question will ask you, find out the ionization energy of some atom, some electron, and they won't give you they will give you one value, uh, but they won't give you the another value. So what is ionization energy? You have already studied in periodic table. It is the minimum amount of energy required to move the electron to infinity from ground state. Okay, so if question I asks you IE, that is your ionization energy, then they won't give you the value of N1 and they won't give you the value of N2 also. It should be automatically understood. N1 will be your 1, N2 will be your infinity, because definition says that from its from its ground state to infinity. So they have already given you the N1 and N2. Then you can find out the value as, we are talking about hydrogen here by the way, हाइड्रोजन के बारे में बात हो रही है. So they won't give you N1 and N2. You have to find out in this particular way only. So 13.6 into Z square 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. मैं आगे माइनस साइन लगा सकती थी अगर मैं N2 को यहाँ पहले लिखती है ना. इट्स द सेम थिंग, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो. So this will become 13.6 into Z square 1 upon N1 will be basically 1 square minus 1 upon infinity square. So you will be left with 13.6 into Z square. So this is the definition of ionization energy. So what they are talking about here is कि आपके पास ये बहुत सारे शेल्स हैं और ये एक इन्फिनिटी वाला शेल है. तो जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको कितनी एनर्जी चाहिए इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए. दैट इज हियर इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी. तो क्वेश्चन क्या बोल किस टाइप के आ सकते हैं. They might ask you like, calculate ionization energy of hydrogen atom, helium plus comma lithium plus 2 ion. ओके, हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए एंड लिथियम के लिए. एंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोल रहा है, कुछ वैल्यू नहीं गिवन है. N1 क्या है, N2 क्या है, आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करना है. N1 इज 1, N2 इज इन्फिनिटी. तो अगर मुझे हाइड्रोजन एटम का निकालना है, हाइड्रोजन एटम पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, Z का वैल्यू 1 होता है. सो आयोनाइजेशन एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, 13.6 into Z square. Here, तो Z square is 1, that means 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फाइन. अब मुझे हीलियम आयन के लिए लिखना है He प्लस. ध्यान देखना है कि यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है और जो ग्राउंड स्टेट में होगा. यूजुअली हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2, बट उसने हीलियम प्लस दिया हुआ है. तो आपको ये नहीं कंफ्यूज होना है कि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कहाँ है, उस पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. वो ऑलरेडी उसके पास एक ही, बोहर का जो मॉडल है वो एक या 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है, बाकी के लिए एप्लीकेबल है भी नहीं. Z की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2. तो आयनाइजेशन एनर्जी जब इसके लिए निकालोगे 13.6 इंटू 2 स्क्वायर, दैट इज 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. In the same way, if I want to find out for lithium plus 2, lithium plus 2 में Z की वैल्यू 3, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, 13.6 into 3 square, that is 9. So 122.4 electron volt. समझ में आया. क्लियर है, वेरी इजी. Okay, now next is excitation energy. What is excitation energy? Okay, now excitation energy also, it's a definition, so they won't give you the value of N1 and N2. You have to understand. So energy required
to excite the electron from ground state to any other excited state is known as excitation energy. So here n1 will be equal to 1, but value of n2 can be from 2, 3 till infinity, and they will give you the value. Okay, they will give you the value for n2 because n1 is fixed, but n2 का value they are going to give you. So अगर मुझे excitation energy निकालनी है, I am writing it here E. It will be equal to 13.6 into z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, which will become 13.6 into z square. n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 upon 1 square minus 1 upon, it could be anything. So I am writing here n2 square. n2 can be anything, which is going to be 13.6 into z square 1 minus 1 upon n2 square. So this will be your uh, excitation energy for any atom. That means n1 will be fixed, but for n2 they will give you the value in the question. Got it? क्लियर है? अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले, कैलकुलेट द फर्स्ट excitation energy of lithium plus 2 ion. So for these types of questions, n1 is fixed, that is 1. Now n2 का वैल्यू क्या होगा? बोल रहे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, इसका मतलब ये न्यूक्लियस है, ग्राउंड स्टेट, first excited state, second excited state. That means they are talking about n is equal to 2. Yes, good Sampada and Renuka. You will have n is equal to 2. So this is n is equal to 2. बस अब फॉर्मूला लगा दो. You will have excitation energy is equal to 13.6 into z square for lithium. It is 3. That means 3 3s are 9 into 1 minus 1 by 4. Got it? Which will be your 13.6 into 9 into 3 by 4. इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर. देखो कितना आ रहा है आंसर. Solve this and let me know what is your answer. What is the final answer here? 91.8 electron. Okay, so 91.8 electron volt. So these types of simple questions, they might come in exam. So you should know the this thing. What will be n1, n2 will be given to you in the same way. Okay, you might come across with the terms called as excitation potential. So potential difference through which a free electron must be
accelerated from rest such that its kinetic energy becomes equal to excitation energy of the atom is known as excitation potential. ओके सो बेसिकली एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या है कि एक्साइटेशन एनर्जी क्या हुआ जब हम ग्राउंड स्टेट से उसको किसी भी एक्साइटेड स्टेट में लेके जा रहे हैं तो उस टाइम पे जितना भी हमको पोटेंशियल के टर्म्स में अगर हम बात करें एनर्जी और पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में भी बात कर सकते हो तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसमें आप एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करोगे रेस्ट से वो अपने जब ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है तो वो रेस्ट में ही प्रेजेंट है ना रेस्ट से किसी और एक्साइटेड स्टेट में इन सच अ मैनर दैट कि जो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इफ यू रिमेंबर एक्स्ट्रा एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इट बिकम्स इक्वल टू द एक्साइटेशन एनर्जी सो उस टाइम पे दैट एनर्जी इज नोन एज बेसिकली और एक्साइटेशन पोटेंशियल एनीवेज इससे कुछ ऐसे अलग से न्यूमेरिकल नहीं आता है बस डेफिनेशन पता होना चाहिए नेक्स्ट वी हैव separation energy. Now for separation energy and it is also known as binding energy. You can say that binding energy. So in this energy required to separate the electron to infinity from any of the excited state is known as सेपरेशन एनर्जी ठीक है तो किसी भी एक्साइटेड स्टेट से ओके तो n1 की वैल्यू कैन बी एनीथिंग 2 से स्टार्ट होगा क्योंकि हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें ग्राउंड स्टेट इज योर 1 तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा 2 3 4 टिल नॉट इन्फिनिटी उससे एक पहले तक की वैल्यू तो इसको चाहे तो इन्फिनिटी मतलब बिफोर इन्फिनिटी है ये और n2 की वैल्यू फिक्स कर दी वो कितनी है इन्फिनिटी ओके तो बस यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू किसकी है n2 की so you can write down here separation energy formula and everything is same 13.6 into z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square which will be 13.6 into z square n1 का वैल्यू फिक्स नहीं है तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा बट n2 का वैल्यू फिक्स है दैट इज योर इंफिनिटी स्क्वायर so the formula comes out to be 13.6 into z square into 1 by n1 square. Got it? Is it clear? आपको इसको अलग से ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये भी आता है ये फॉर्मूला पता है याद है और आपको ये पता है कि सेपरेशन एनर्जी के लिए n1 और n2 क्या होगा तो आप एनीवेज निकाल सकते हो है ना चलो so all the different types of energies are finished now we will be talking about hydrogen spectrum what is spectrum spectrum is basically scattering of light so you might have come across these things कि prism कहीं देखा होगा physics में अगर हम white light को pass करते हैं prism से okay so उसके बाद हमको variation of different spectrum observe होता है yes or no have you seen it ये पढ़ा है कहीं तो ये जो आपको ऑब्जर्व हुआ व्हाट इज दिस दिस इज योर स्पेक्ट्रम
सो इन द सेम वे हाइड्रोजन भी अपना स्पेक्ट्रम हमको देता है। ओके, सो पहले थोड़ा सा देखते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। ऑल्दो एग्जाम में इसमें से कुछ नहीं आएगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, कितने टाइप का होता है, बट हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले हमको बाकी देखना पड़ेगा। ओके, सो राइट डाउन स्टडी ऑफ emission and absorption of spectrum. So is no basically किसी कोई भी आप बॉडी ले लो, ठीक है, उसमें से अगर लाइट पास कर रही है तो कुछ लाइट वो एब्जॉर्ब करेगी, ओके, कुछ लाइट वो रिफ्लेक्ट करेगी, ओके, कुछ लाइट वो ट्रांसमिट करेगी। सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होते हैं, दैट इज जो लाइंस ऑफ लाइट ऑब्जर्व होते हैं, दैट इज नोन एज योर स्पेक्ट्रम। और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं इस रेडिएशन को सेपरेट करने के लिए, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोप। सो राइट डाउन हियर, an instrument used to separate radiation of different wavelength or frequency is known as spectroscope. Okay, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट हमने यहाँ पे प्रिज्म यूज किया, so prism here will be called as your spectroscope. Next, write down the pattern or photograph of the इमर्जेंट, मतलब ये जो बाहर आपको डिफरेंट डिफरेंट रेज के फॉर्म में मिला है, रेडिएशन रिकॉर्डेड ऑन अ फिल्म और स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो आपको किसी आप इसको ऐसे हवा में कलर्स नहीं देख पाओगे, किसी फिल्म पे ही आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो जो फिल्म पे आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम मिल रहा है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राम। और स्पेक्ट्रम ऑफ अ गिवन रेडिएशन, और या फिर सिंपली स्पेक्ट्रम बोल देंगे। सो बेसिकली ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस which is going to deal with the study of spectrum is known as your spectroscopy. So write down, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, ओके, डेफिनेशन बताओ, no one will ask you, but you should know all these things. Branch of science dealing with spectrum is called spectroscopy. ओके, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पेक्ट्रम होते हैं। दो कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो। पहले तो बेस्ड ऑन नेचर, स्पेक्ट्रम का नेचर किस टाइप का है, ओके, और दूसरा बेस्ड ऑन ऑरिजिन, कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है। ओके, लिखो जल्दी से।
Done writing? ओके, अब नेचर में दो तरीके का हो सकता है, एक तो कंटिन्यूस हो सकता है ना, कि आपको कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हो विदाउट एनी गैप, दैट इज नोन एज कंटिन्यूस, एंड सेकंड कैन बी योर डिसकंटिन्यूस. दिस इज योर continuous and second type can be your discontinuous. कंटिन्यूस में आपको लगातार स्पेक्ट्रम दिखाई देगा लाइक दिस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और डिसकंटिन्यूस में क्या होगा, कुछ टाइम तक स्पेक्ट्रम होगा, फिर गैप आएगा, देन अगेन स्पेक्ट्रम दिखेगा, फिर गैप आएगा, फिर अगेन एक स्पेक्ट्रम दिखेगा. तो इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम. अब डिसकंटिन्यूस में भी दो तरीके, तो इसमें तो स्पेक्ट्रम एकदम पास पास में होगा, यू कांट इवन डिफरेंशिएट, ऐसा होगा. डिसकंटिन्यूस में भी एक तो होता है लाइन स्पेक्ट्रम जो लाइन की तरह दिखेगा, और दूसरा बैंड स्पेक्ट्रम जो बैंड की तरह दिखेगा. तो ये एक्चुअली ये बैंड स्पेक्ट्रम मैंने ड्रॉ कर दिया है, तो इन दोनों को अलग से बता देती हूँ. अब लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, यू विल गेट द लाइन गैप, लाइन गैप, लाइन गैप, ऐसे पर्टिकुलर गैप आपको दिखाई देगा. और बैंड स्पेक्ट्रम में इस तरीके से पहले बैंड आएगा, फिर गैप, फिर बैंड आएगा, फिर गैप, फिर बैंड आएगा, फिर गैप, एंड लाइक दिस. सो दिस इज नोन एज बैंड स्पेक्ट्रम. ओके, राइट डाउन दिस. ओके, नहीं इसमें से कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा शक्ति का, कुछ भी नहीं. अभी मैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, की बेसिक नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, ओरिजिन के बेसिस पे भी देयर कैन बी एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. सो राइट डाउन, एमिशन स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन लिख लो. कोई डेफिनेशन इसमें से एग्जाम में नहीं आएगा, चाहे आप स्कूल के एग्जाम ले लो, चाहे आप जेई नीट ले लो, किसी भी एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा. सो एमिशन स्पेक्ट्रम इज व्हेन radiation emitted from some source, that is from sun या फिर बल्ब या फिर passing electric discharge, or you can say that through gas at low pressure. कोई गैस किसी ट्यूब में प्रेजेंट हो बहुत ही लो प्रेशर में, और हीटिंग एनी ऑब्जेक्ट, at high temperature, etc., and passed through the prism and received on photographic plate. Then the spectrum obtained is called
emission spectrum. So what this definition means कि अगर आप कोई लाइट सोर्स ले लो, लाइट सोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, सन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर कोई ऐसा ट्यूब हो जहाँ पे गैस प्रेजेंट हो एट अ लो प्रेशर, वहाँ पे अगर लाइट कुछ हो रहा है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट करो, ठीक है, और उसके बाद उस लाइट को अगर आप प्रिज्म से पास करोगे तो जो भी आपको स्पेक्ट्रम मिलने वाला है फोटोग्राफिक प्लेट पे, दैट स्पेक्ट्रम इज नोन एज योर एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। ओके, आफ्टर हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर शॉर्ट फॉर्म में टी लिखा हुआ है, आफ्टर हाई टेम्परेचर, उस टाइप के एमिशन को आप बोलोगे एमिशन स्पेक्ट्रम। एंड दिस एमिशन स्पेक्ट्रम कैन बी कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, कुछ भी हो सकते हैं वो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अभी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होते हैं कि जब भी हम किसी वाइट लाइट को पास कर रहे हैं कोई भी सोर्स से, ओके, थ्रू अ प्रिज्म, तो आपको जो विबग्योर का डिफरेंट स्प्लिट ऑफ कलर्स मिलता है तो वो कंटिन्यूस होता है। क्या आपको बीच में उसके कलर में कोई गैप दिखता है कभी भी? अगर आप रेनबो भी चेक करते हो, रेनबो भी तो एक सेम टाइप का फिनोमिनन है। रेनबो जो है वो क्या है, इट इज नथिंग बट स्पेक्ट्रम ओनली। जब आप रेनबो देखते हो तो ये जो रेन के वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, दे एक्ट एज अ प्रिज्म। सो व्हाइट लाइट जब इन रेन ड्रॉपलेट्स से पास होते हैं तो दे ब्रेक डाउन इनटू डिफरेंट स्पेक्ट्रल ऑफ लाइंस, दैट इज योर वेबग्योर, जो रेनबो मिलता है आपको। तो दैट इज अ टाइप ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। सब के सब जो कलर्स हैं आपस में क्या होते हैं, मर्ज रहते हैं। गॉट इट? तो अभी हमें कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, बैंड, लाइन, स्पेक्ट्रम इन सब में नहीं जाना है। वो जस्ट आपको बेसिक नॉलेज दे दिया कि व्हाट डज इट मीन, कि कभी किसी बुक में पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए व्हाट डज इट मीन। बाकी फिजिक्स में आप ये डिटेल से पढ़ोगे। हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हमें उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी करना है कि उसके स्पेक्ट्रम किस टाइप के आते हैं, कैसे कैसे डिफरेंट स्पेक्ट्रम है। ठीक है, जल्दी से ये लिखो, फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टार्ट करते हैं। डन राइटिंग? ओके, चलो। सो हाउ वी फॉर्म हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कैसे मिलता है हमको? So here, when hydrogen gas at low pressure is taken in discharge tube and light emitted on passing, electric discharge and then passed through a prism, we observe a spectrum which is
called as emission spectrum of hydrogen. So what we do is कि हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं. दिस इज आवर डिस्चार्ज ट्यूब. इसको हमने इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करके रखा हुआ है. यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपके पास? हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर. बहुत ही लो प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस है. तो ये क्या करता है? एक लाइट एमिट करता है, बट वो जो लाइट होगा वो सिंगल लाइट दिखाई देगा. देन वी मेक इट टू पास थ्रू प्रिज्म. प्रिज्म से पास होने के लिए ये 6 के बाद ये 6 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस में डिवाइड हो जाते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमको स्पेक्ट्रो जो भी स्पेक्ट्रोग्राफिक प्लेट होता है, वी गेट 6 डिफरेंट लाइंस. और जब हम इन लाइंस को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ऐसे बाहर से दिखने में तो 6 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस दिखते हैं. जब हम माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, इनके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस. ये सब मिला के एक बना रहा है. ये सब मिला के नॉर्मली एक दिख रहा है, लाइक दिस. और एक और लाइक दिस. तो बेसिकली माइक्रोस्कोपिक व्यू में जब हम देखते हैं, वी गेट दिस काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन. गॉट इट? अब इन्हीं स्पेक्ट्रल लाइंस का हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखेंगे कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे फाइंड करते हैं. सो राइट डाउन हियर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट. ड्रॉ कर लो पहले ये जल्दी से. डन राइटिंग? फाइन. चलो देखो, अब मैथमेटिकली हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, किस तरीके से हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे. तो कभी भी जब आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से इसको पास कर रहे हो तो इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हो? एनर्जी दे रहे हो. एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से हाइड्रोजन जो है वो ब्रेक हो जा रहा है. ओके, ब्रेक होने की वजह से इसके कुछ वेवलेंथ रिलीज कर रहा है लाइट का, जिसको आप प्रिज्म से पास करके फोटोग्राफिक प्लेट में डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व कर रहे हो. सो बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही आप हाइड्रोजन कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके अंदर, ओके, वो एनर्जी गेन करता है. और एनर्जी गेन करेगा तो हायर लेवल पे जाएगा. ओके, तो मान लेते हैं वो N1 इज 1 और N1 से चले गया एनर्जी गेन करके किस पे? N2 पे. ओके, अब आपको बताया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जा रहा है तो एनर्जी क्या करता है? गेन करता है. अब यही इलेक्ट्रॉन वापस भी आएगा. जब ये वापस आएगा तो एनर्जी क्या करने वाला है? रिलीज करने वाला है. ओके, सो व्हेन अ फोटोन इज एमिटेड बेसिकली थ्रू अ हाइड्रोजन एटम, जो भी आपने यहाँ से फोटोन लाइट को एमिट किया है, इलेक्ट्रॉन इज अंडरगोइंग अ ट्रांजिशन, ओके, फ्रॉम लोअर एनर्जी टू द हायर एनर्जी लेवल. गॉट इट? बट जब वो वापस आएगा from higher energy level to the lower energy level, there will be the transmission of light. बाहर एनर्जी निकलेगी. मैंने बोला एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो लाइट के फॉर्म में रिलीज हो रही है. अब इसी को हमको मैथमेटिकल फॉर्मूला में चेक करना है. ठीक है, जस्ट राइट डाउन. मान लेते हैं मेरे पास 2 स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, 2 एनर्जी लेवल है बेसिकली, नॉट स्पेक्ट्रल लाइंस.
1 second. One second, everyone. Yes. So let's say we have two energy levels. These two energy levels. This is your n is equal to 1 and this is your n is equal to 2. तो यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी? अगर मैं -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है? 1/n2² माइनस 1/n1². अगर मैं माइनस लिख रही हूँ, ठीक है, n2 तो है ही नहीं, तो मेरे पास क्या बचेगा? 1/n1². ओके, लाइक दिस. अब अगर हम इस एनर्जी लेवल की बात करें तो दिस इज गोइंग टू बी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई n2². जो सिंपल फॉर्मूला हमने पढ़ा था एनर्जी का, जब हम बोहर ऑर्बिट की एनर्जी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो फॉर्मूला क्या था? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई n². तो ये n1 के लिए n1² कर दिया, n2 के लिए n2² कर दिया. अब अगर मुझे चेंज या फिर मैं बोल सकती हूँ डिफरेंस मुझे फाइंड आउट करना है इन दोनों एनर्जी के बीच का, चेंज इन एनर्जी, तो डेल्टा ई में क्या लिख सकती हूँ? डेल्टा ई इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/n1² माइनस -13.6 जेड स्क्वायर 1/n2². क्या मैं ये लिख सकती हूँ? यस और नो? यही तो हमने किया था ना अभी थोड़ी देर पहले जब हम डिफरेंस निकाल रहे थे एनर्जी के बीच में. जल्दी से बताओ भाई. इसी से तो हमने फॉर्मूला निकाला था. तो डेल्टा ई किसके इक्वल हो रहा था? कुछ कुछ चीज़ें कॉमन ले लो. ये हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2². यही हमने फॉर्मूला डिराइव किया था. नाउ कमिंग बैक, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, अब प्लैंक ने क्या बोला था? ओके, व्हाट यू विल गेट द सेम आंसर संपदा. फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा. लास्ट क्लास में ये बताया था हमेशा. Energy absorbed or energy released, delta E will always be equal to E2 minus E1. You will get the same thing. अच्छा तुम ये बोल रहे हो, अच्छा फाइन, समझ गई, सॉरी, हाँ, n2² माइनस n1² कर दो. आई एम सो सॉरी. हाँ ठीक है, n2² माइनस n1² कर दो. ठीक है, फाइन. सो ये आपको एनर्जी मिल गई. अब ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रही है? ये एनर्जी रिलीज हो रही है फोटॉन्स के फॉर्म में. ओके, सो राइट डाउन हियर, दिस एनर्जी is released in the form of photons. अरे संपदा, सही तो किया था मैंने. फाइनल तो यहाँ पे n1 है ना संपदा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है. एनर्जी रिलीज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन, जब हम एमिशन स्पेक्ट्रम जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन n2 से वापस n1 में आ रहा है, तो जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो n1 ही होगा ना. यू ऑल्सो मेड मी कंफ्यूज्ड. दिस इज n फाइनल, तो इसका n1 ही हुआ ना, n1² माइनस n2².
एंड स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर ओनली. यही मिलेगा आपको आंसर में. ओके मैं ये नहीं बोल रही इलेक्ट्रॉन जब गया तो उसने एनर्जी रिलीज करी, तो ये फाइनल था, ये इनिशियल था. अब जब वापस आएगा तो ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया. तो फाइनल माइनस इनिशियल ही तो किया मैंने. ठीक है फाइन. ओके सो नाउ दिस एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. और फोटॉन्स की एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? प्लैंक कांस्टेंट ने क्या बोला था? E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा. तो इस एनर्जी को और इस एनर्जी को हम इक्वेट कर सकते हैं. तो हमको क्या मिल जाएगा? एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. दोनों एनर्जी को हमने इक्वेट कर दिया. ऐड क्यों करेंगे शक्ति का? हम माइनस कर रहे हैं ना, तो ऐड क्यों करेंगे? Why do we add it? डिफरेंस निकाल रहे हैं ना हम उनके बीच की एनर्जी का. N2 से जब N1 आ रहा है तो कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इसकी जो एनर्जी है और इसकी जो एनर्जी, उसके बीच का गैप निकालेंगे ना हम. ऐड थोड़ी करेंगे, माइनस कर रहे हैं हम. दोनों की एनर्जी एड अप करके कुछ नया थर्ड एनर्जी थोड़ी आ रहा है. हम स्टडी किसको कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ. हाइट, मेरे को स्पेक्ट्रम कब मिलेगा? ये मेरा N1 इज इक्वल टू 1, दिस इज N इज इक्वल टू 2. जब इलेक्ट्रॉन मेरा N1 से N2 पे एक्साइट किया, मैंने उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करी थी, तब वो एक्साइटेशन होके ऊपर गया. अब जब वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज होगा. ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वही क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको? स्पेक्ट्रम. तो हम इसके बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं कि जब वो वापस आता है अपनी लोअर एनर्जी पे, तो जो स्पेक्ट्रम रिलीज करता है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. तो N1 से N2 में स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा ही नहीं. स्पेक्ट्रम तो आपको मिलेगा कहाँ से? N2 से जब N1 आओगे, आप हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आओगे. अभी ठीक है. जब जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो थोड़ी स्पेक्ट्रम देगा. इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम. ओके तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, आपको पता है कि लाइट या एनर्जी उसके डुअल नेचर होता है. वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है. पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंगली प्लैंक ने एनर्जी का फॉर्मूला ये दिया था. तो ये दोनों एनर्जी को आई कैन इक्वेट, और इक्वेट करके वी विल हैव हियर 1/लैम्डा को मैं यही रख देती हूँ. एच सी यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो वी विल हैव 13.6 डिवाइडेड बाई एच सी जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. 1/लैम्डा इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट वैल्यू है, 13.6 तो एक कांस्टेंट नंबर है. देन वी हैव प्लैंक्स कांस्टेंट, इट इज आल्सो अ कांस्टेंट. स्पीड ऑफ लाइट c, वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है. इसको हम r से रिप्रेजेंट कर देते हैं. इट इज अ कांस्टेंट r. ये हो गया जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. 1/लैम्डा को हम वेव नंबर भी लिख सकते हैं. इफ यू रिमेंबर डेफिनेशन बताया था वेव नंबर का. सो वी विल हैव r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. बात समझ में आई? लिख लो यहाँ पे r इज योर रेडबर्ग कांस्टेंट. ओके और r का जो वैल्यू होता है इट इज इक्वल टू 1.09768 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स. या फिर कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप लिख सकते हो 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स. थोड़ा सा और कैलकुलेशन इजी करना है तो हमको ये तो पता चल रहा है कि 13.6 डिवाइडेड बाई एच सी किसके इक्वल होता है r. तो मैं r
इंटू एच इंटू सी को किसके इक्वल लिख सकती हूँ 13.6, तो मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ओके, ऐसा ऐसा पूछा जाता है, एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो नॉट दैट इम्पोर्टेंट। एडवांस जेई में ऐसा कुछ पूछा था, जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन इजी। जस्ट राइट डाउन हियर, जब क्वेश्चन करोगे तो यू विल हैव द आइडिया। ओके, छोटा सा एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से थोड़ा आइडिया हो जाएगा। कैलकुलेट wavelength of photon emitted for रुको रुको अभी मत करो, पहले स्पेक्ट्रल लाइंस पूरा पढ़ लेते हैं फिर इसके बारे में करेंगे क्वेश्चन। चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन के डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, और उन स्पेक्ट्रम का नाम भी दिया है। जो हमने 6 स्पेक्ट्रम देखे थे, वो 6 स्पेक्ट्रम हमारे पास कौन कौन से हैं अब हम वो देखते हैं। लिख लो ये जल्दी से पहले। लिखो प्रशस्ति एंड क्रिश। डन राइटिंग? चलो, अभी ये जो हाइड्रोजन के डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम है, वो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किए थे, तो उन्हीं के नेम पे इस स्पेक्ट्रल सीरीज का अलग अलग नाम है। ओके, ओके, so let's draw this first one. एक सेकेंड। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं थोड़ा सा कोशिश किया है कि एनर्जी गैप धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है वो दिखाने का ट्राई करूँ, बट समहाउ चलो ठीक है। सो दिस इज योर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, पहली सीरीज के लिए
अगर आपका इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 8 से n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, देन n इज इक्वल टू 7 से 1 पे आ रहा है, देन 6 से 1 पे आ रहा है। ये सब स्ट्रेट लाइन होगा, है ना? मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। This one. So this is known as your Lyman series. Okay, this is your Lyman series. Next is your n is equal to 2 पे अगर फॉल कर रहा है तो अब ये इन्फिनिटी से भी हो सकता है ना? हम इन्फिनिटी से भी आ सकता है, बट मैं 8 तक ही ड्रॉ कर रही हूँ। ये अगर इलेक्ट्रॉन 8 से 2 पे गिर रहा है, 7 से 2 पे गिर रहा है, 6 से 2 पे गिर रहा है, 5 से 2 पे गिर रहा है, 4 से एंड 3 से, this gives you the Balmer series. The name of these series is called as Balmer. Then अगर n is equal to 3 की बात करें, n is equal to 8 से गिर रहा है, यहाँ से, इधर से, इधर से एंड इधर से, ये सब पास पास में रहेंगे बहुत ज़्यादा. This is known as Paschen. If electrons are coming from here, this is known as bracket. This is known as bracket. Then we have, यहाँ से अगर इस पे गिर रहा है, इधर आ रहा है और इधर आ रहा है, दिस इज नोन एज पी फंड. ओके, एंड लास्ट वन इज योर, यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिसको बोलते हैं हम्फ्री. ओके, तो आप इफ यू रिमेम्बर स्टार्टिंग में मैंने अभी आपको बताया था कि 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी हाइड्रोजन की, और उसको जब हमने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो और फर्दर बाइफर्केशन थे, तो यही फर्दर बाइफर्केशन है. गॉट इट? हाँ हाँ, ड्रॉ करना है क्रिश, क्यों नहीं ड्रॉ करना है, बट जल्दी जल्दी करना, टाइम वेस्ट नहीं करना. दिस इज नोन एज लाइमन सीरीज. लाइमन सीरीज यूवी रीजन में पड़ता है. यूवी रीजन में पड़ता है तो आप इसको देख नहीं सकते. दिस इज योर बाल्मर सीरीज, साइंटिस्ट के नेम पे. ये विजिबल रेंज में पड़ता है, तो यही एक स्पेक्ट्रल लाइन है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बाकी सबको ऑब्जर्व नहीं कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट इज योर पास्चन. पास्चन सीरीज की अगर आप बात करो, पूरा लिख लो यहाँ पे, पास्चन सीरीज ये पड़ता है आईआर में, इंफ्रारेड रेडिएशन में. देन नेक्स्ट इज योर ब्रैकेट. ये भी पड़ता है आईआर में. नेक्स्ट इज योर पी फंड. दिस ऑल्सो लाइज इन आईआर. एंड लास्ट इज योर Humphrey series, which lies in again IR. ड्रॉ करो जल्दी से. तो ये जो आपके पास विजिबल वाला शो हो रहा है यहाँ पे, ये पूरा कंसिडर करेगा आपका जो विबग्योर वाला रेंज होता है वो. ओके, वॉयलेट से स्टार्ट होगा समवेयर अराउंड 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ से टू 7000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, तो पूरा विबग्योर विजिबल रीजन कवर करेगा. सो VIBGYOR. और यही हमको जब शॉर्ट फॉर्म में जब हम देख रहे थे ना, वाइट लाइट आया, प्रिज्म आया, तो हमको 6 स्पेक्ट्रल लाइंस दिख रही थी. ये वही स्पेक्ट्रल लाइंस है जिसको माइक्रोस्कोप में हमने देखा था, तो हमको इस तरीके से दिखाई दे रहे थे. दे आर लाइक दिस.
हो गया लिखना? चलो आई होप सबने ड्रॉ कर लिया होगा. वी विल बी थोड़ा सा इंडिविजुअली इन सारे सीरीज के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट वन इज योर लाइमन सीरीज. लाइमन सीरीज में इट इज द फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का पहला स्पेक्ट्रल सीरीज है. नेक्स्ट इट बिलोंग्स टू यूवी रीजन. ये यूवी रीजन में बिलोंग करेगा तो हमको दिखाई नहीं देगा. ऑफ कोर्स N1 का वैल्यू 1 रहेगा, वो तो फिक्स्ड है. एंड N2 कुछ भी हो सकता है आपका, 2, 3, 4 से इंफिनिटी. ओके, इज इट क्लियर? ये तो आपको ऑलरेडी पता है. अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछ के, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ, लेट्स से ये हो गया हमारे पास. चलो लाइमन सीरीज के लिए हमारे पास क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, इलेक्ट्रॉन इधर आया, इधर आया, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इतनी सारी हमारे पास सीरीज आई है. अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा और ये मान लो यहाँ से इन्फिनिटी भी है, ठीक है, इन्फिनिटी, तो N1 इज इक्वल टू 1 है. बट इफ द क्वेश्चन आस्क्स यू फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज की पहली लाइन कौन सी है, सो वो पहली लाइन होती है आपकी ये वाली. दिस इज नोन एज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. तो ये कौन सी हो गई, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. ये वाली क्या हो जाएगी, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज एंड सो ऑन. तो जो इन्फिनिटी से आ रही होगी, एक लाइन इन्फिनिटी से भी आएगी, दैट लाइन इज नोन एज लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. तो कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा डायरेक्टली कि फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. तो उसके लिए आप N1 की वैल्यू तो 1 लोगे, बट N2 की वैल्यू क्या लोगे, बताओ डायग्राम से. N1 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी. अगर मैं बोलूँ थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ N2? Yes, good Reshma. It will be, yes, Renuka, Sohan, Snigdha, good. It will be of course 4. Sampada 4 होगा, ध्यान से देखो. This is N is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and infinity. तो जो थर्ड लाइन है मेरी, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस इज माय थर्ड लाइन. तो थर्ड लाइन कहाँ से फॉल कर रही है, 4 से. तो क्वेश्चन में आपको N2 का वैल्यू नहीं देगा. वो इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि आप थर्ड लाइन का निकालो, सेकंड लाइन का निकालो, ठीक है. तो दिस यू शुड नो. सो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के लिए N1 का वैल्यू विल बी 1 और
N2 का वैल्यू विल बी 2। अब ये बताओ इस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी आपका मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? फॉर दिस ट्रांजिशन कमिंग फ्रॉम N2 टू N1 एनर्जी मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? अभी आपको ऊपर शॉर्टकट बताया था, उसी से फाइंड आउट करना है। यस, गुड प्रशस्ति। एनीवन एल्स? चेक करो जो शॉर्टकट में बताया था कि मुझे अगर एनर्जी मैक्सिमम बोला है और मिनिमम बोला है तो किस तरीके से निकालना है। मैक्सिमम कैसे होगा संपदा? नोट्स में चेक करो बेटा। अभी दोबारा आई कैन टीच यू सेम थिंग नो। नोट्स में चेक करो। सीरीज में भी इससे पहली वाली लास्ट क्लास में यही बताया था कि सीरीज अगर मुझे पता करना है कि एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम किस में आ रहा है तो मैं बार बार उसको सॉल्व करते हुए नहीं बैठूंगी। एनर्जी मिनिमम के लिए बोला था कि N1 का वैल्यू हाईएस्ट होना चाहिए और N2 का वैल्यू उससे क्लोजेस्ट होना चाहिए, है ना? तो यही सब आपको छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए, अदरवाइज डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एनर्जी जो है यहाँ पे क्या है? मिनिमम है। और मैक्सिमम कब हो जाएगी एनर्जी? जब इन्फिनिटी से कहाँ पे आ रहा है? N1 पे। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी, या फिर एनर्जी मिनिमम है तो लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। ऐसे ही लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के लिए N1 का वैल्यू 1 होगा, N2 का वैल्यू इंफिनिटी होगा। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी और लाइन ऑफ मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, लिखो ये। डिफिकल्ट नहीं है ये सारी चीज़ें, बट थोड़ा सा आप, ध्यान लगाओगे ना तो यू विल गेट थ्रू इट। डन राइटिंग? तो इससे अगर आपको कोई क्वेश्चन बोले कि आपको लाइमन सीरीज की एनर्जी निकालनी है मिनिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए, या फिर फर्स्ट लाइन के लिए, सेकंड लाइन के लिए, थर्ड लाइन के लिए, लास्ट लाइन के लिए, आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे फॉर हाइड्रोजन अगर निकालना है लाइमन सीरीज के लिए, तो पहला मैं फर्स्ट लाइन की अगर बात करूँ तो N1 का वैल्यू 1 है, N2 का वैल्यू 2 है। अगर मुझे वेवलेंथ निकालना है तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसको आर एच, आर या आर एच दोनों भी बोल सकते हो आप। रेडबर्ग कांस्टेंट 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, यही था, विच इज गोइंग टू बी 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। So 1/lambda will be equal to RH 4 minus 1 by 4, that is 3/4। और क्योंकि ये फर्स्ट लाइन है तो वेवलेंथ तो मैक्सिमम होगी, मैं यहाँ पे मैक्सिमम लिख सकती हूँ। तो आई कैन राइट डाउन लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 4/3 R। यस और नो? अब रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मैं अगर पुट कर दूं तो लैम्डा मैक्स निकल के आ जाएगा, है ना? लिखो ये।
और हाइड्रोजन के लिए मैंने आपको E1 का एनर्जी इफ यू रिमेम्बर लिखवा दिया था। E1 का एनर्जी कितना आ रहा था, -13.6 बोला था मैंने, याद कर लेना बेटर रहेगा। E2 का एनर्जी कितना था, -3/4। तो इस सीरीज का जो ट्रांजिशन हो रहा है उसका अगर मुझे एनर्जी निकालना है तो वो इसका डिफरेंस हो जाएगा, एंड दैट विल बी एनर्जी मिनिमम। फॉर हाइड्रोजन की बात हो रही है, सो इट विल बी बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियल। आप टॉप से किस में आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, सो दिस विल बी -13.6 माइनस ऑफ 3.4। तो एनर्जी का जो वैल्यू आता है इट इज -10 डेल्टा एनर्जी का जो चेंज आ रहा है, डिफरेंस जो भी आ रहा है, एंड दिस इज योर एनर्जी मिनिमम। ऐसे ही अगर मुझे लास्ट लाइन के लिए निकालना है, n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा 1/λ। अब मैक्सिमम नहीं, क्या होगा, मिनिमम। इट विल बी इक्वल टू RH 1/1 square minus 1/, infinity square, which will be equal to 1/λ minimum is equal to, ये तो सिर्फ RH बचेगा, that means lambda minimum is equal to 1/RH. That is your Rydberg constant. और यहाँ पे अगर मुझे एनर्जी निकालना है तो E1 तो -13.6 होता है, E2 यहाँ पे 0 है, तो जो भी चेंज इन एनर्जी आया वो कितना है, -13.6। दिस इज डेल्टा E मैक्स। मैक्सिमम एनर्जी आपको लास्ट लाइन में मिलेगी। ओके, थोड़ा सा नोट्स से गो थ्रू करो, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट, देन वी विल गो थ्रू बाल्मर सीरीज। डन? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी भी चीज में तो पूछ लो। सेकंड है हमारे पास बाल्मर सीरीज। लाइमैन और बाल्मर सीरीज पे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब बाल्मर सीरीज क्या है आपके पास, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन, सो इट इज सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन। Second important point, it belongs to visible region, visible region और visible range। ठीक है, तो जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है अभी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो ये n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दे फॉर बाल्मर सीरीज कहाँ पे आके फॉल कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 2 पे।
दिस इज योर बाल्मर सीरीज. सो फॉर बाल्मर सीरीज n1 का वैल्यू 2 है, फिक्स है वो, और n2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5 टू इन्फिनिटी. यहाँ पे एक लेके चल लो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से भी इस पे आएगा ही. अभी फॉर दिस बाल्मर सीरीज अगर मुझे बात करनी है फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का क्या रहेगा रेंज फॉर n की वैल्यू. फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, इसके लिए n1 का वैल्यू तो 2 रहेगा, n2 का वैल्यू क्या होगा 3. तो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है फ्रॉम 3 to 2. अगर आपसे पूछ ले सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर सीरीज की सेकेंड लाइन के लिए n1 का वैल्यू तो फिक्स है, n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4. यस और नो. और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले फोर्थ लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, n1 का वैल्यू तो फिक्स है, n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6. ओके. सो फर्स्ट लाइन को छोड़ के अगर उससे अलावा कुछ भी पूछ रहा है आपको, जैसे फोर्थ लाइन बोल रहा है, सॉरी जैसे ये सेकेंड लाइन बोल रहा है, सेकेंड लाइन में आप क्या करोगे 2 + 2, दिस इज फॉर सेकेंड, 2 ऐड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कौन सी लाइन के बारे में n2 का वैल्यू कितना होगा. अब जैसे फोर्थ लाइन बोला तो फोर्थ लाइन के लिए 4 + 2 कर दो, ये दिस इज योर फोर्थ लाइन, तो ये आपको वैल्यू दे देगा 6. दैट मीन्स n2 का वैल्यू 6 हो गया, ये हो गया 4. दैट मीन्स n2 का वैल्यू 4 हो गया. अगर आपको क्वेश्चन ऐसे बोल दे, मान लो 8th लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी देखते बैठूंगी कौन सा, मतलब 8 कहाँ से आ रहा है, क्या जा रहा है, तो मुझे क्या करना है उसके लिए, n1 तो 2 है, n2 कितना हो जाएगा 8 + 2 दैट इज 10. बात समझ में आया. यहाँ पे चाहे लिख लो 8 + 2 10 इज इक्वल टू n2. तो बाल्मर सीरीज के लिए अगर आपको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लाइन के लिए पूछ रहे हैं तो आप उसमें 2 ऐड कर दो, एक्सेप्ट द फर्स्ट वन. इवन फर्स्ट वन के लिए भी फॉलो कर रहा है ना. आप बोलोगे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइनमैन सीरीज, दैट मीन्स 1 + 2 दैट इज 3 इज इक्वल टू n2. कोई भी लाइन अगर पूछ लिया है आप उसके लिए +2 कर दो, तो यू विल गेट दी n2 वैल्यू फॉर बाल्मर सीरीज. लिखो ये. अब अगर मुझे बाल्मर सीरीज हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है तो हमें पता है फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1. ओके. E2 की जो एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम मैंने बता रखी थी आपको -3.4 है, याद कर लो. ओके. और E3 के लिए जो एनर्जी है दैट इज -1.5, और एनर्जी फॉर इंफिनिटी इज ऑलवेज 0. दिस यू शुड रिमेंबर. तो अगर मुझे फर्स्ट लाइन के लिए निकालना है ऑफ बाल्मर सीरीज, तो डेल्टा E का वैल्यू क्या होगा, E3 - E2 which will be equal to 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और अगर मुझे इसका वेवलेंथ निकालना है तो वेवलेंथ में दूसरे, अगर मुझे वो सीरीज का फॉर्मूला नहीं लगाना, उसके अलावा निकालना है तो मैं ये भी यूज़ कर सकती हूँ 12400 डिवाइडेड बाई 1.9. तो जो भी आपके पास वेवलेंथ आएगा दैट इज 6500 एंगस्ट्रॉम आएगा आंसर. ये फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज हो जाएगी. इसको आप अलग तरीके से भी निकाल सकते हो. वो कैसे निकालोगे, जो रेडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला है आपके पास,
1 upon lambda is equal to RH 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स दिस इज द इजीएस्ट वे, सो यू कैन यूज दिस ऑल्सो. और अगर मेरे को लास्ट लाइन लेना है ऑफ बाल्मर सीरीज, तो लास्ट लाइन के लिए ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, तो चेंज इन एनर्जी करोगे E infinity minus E2 which will be equal to 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और अगर मुझे इसके लिए लैम्डा निकालना है तो 12400 डिवाइडेड बाई 3.4. इसको सॉल्व करोगे वैल्यू आएगा कुछ 3650 एंगस्ट्रॉम. गॉट इट? अच्छा, एक चीज है ये ध्यान रखना है, जब हम एनर्जी निकाल रहे हैं, कभी भी मैं एनर्जी निकाल रही हूँ, चाहे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा हो, n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू 2, फर्क नहीं पड़ता है. जब आप चेंज निकालोगे इट विल ऑलवेज बी E2 माइनस E1, हमेशा. इट डज नॉट मैटर आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहे हो या फिर इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हो, जस्ट रिमेंबर दिस. जब एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट करोगे it will always be from E2 to E1. Okay, नोट डाल के एक चीज लिख लो, all the lines of Balmer series in hydrogen spectrum does not lie in the visible range. सारे के सारे विजिबल रेंज में नहीं पड़ते. In fact, only first 4 lines belong to visible region. ठीक है, सिर्फ फर्स्ट 4 ही विजिबल रीजन पे बिलोंग करते हैं, बाकी सब नहीं बिलोंग करते. चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करो इसमें. कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ एक्सट्रीम लाइंस इन टर्म्स ऑफ RH. एक्सट्रीम लाइंस का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रीम लाइंस? फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन. दे आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट लाइंस एंड लास्ट लाइंस. ये होमवर्क में कर लेना, ट्राई करना, होमवर्क में करना, इजी है बहुत. आई विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास. सेकेंड क्वेश्चन होमवर्क में ही है. Calculate wavelength of third line of Balmer series of lithium plus 2 ion in terms of RH. Third question के लिए, if wavelength of fourth line of Balmer series of helium plus ion is X, then calculate
then calculate wavelength of third line of Balmer series of beryllium plus 3 ion in terms of x. सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, बस वो लाइमन बाल्मर करके नाम चेंज कर दिया है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है. Okay, so all these questions are for homework. Okay, I will take just 5 minutes. I want to complete this Paschen, Brackett and Pfund and Humphrey. Okay, it will just take 5 minutes. So let's complete it. All these questions you do it for homework. Okay, so third line is your Paschen series. Paschen series के लिए it is the third series in hydrogen spectrum. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में थर्ड उसमें आता है. नेक्स्ट पॉइंट इज it belongs to IR region, infrared region में belong करेगा. Then we have N1 का वैल्यू इसमें 3 रहेगा, N2 का वैल्यू 4, 5 2 इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है. अगर मुझे इसके लिए वेवलेंथ लिखना है तो मैं लिखूंगी RH(Z²). हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1 आ जाएगी. 1/3² माइनस 1/N2². N2 कुछ भी हो सकता है. ठीक है. हाइड्रोजन के लिए अगर आपको फर्स्ट लाइन के लिए निकालना है यहाँ पे, अब फर्स्ट लाइन फॉर पास्चन सीरीज N1 तो 3 रहेगा, N2 कितना हो जाएगा 4. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं 1 प्लस फर्स्ट लाइन पूछा है, हाँ, तो 1 + 3 करते जाएंगे इसमें. दिस विल बिकम 1 + 3 अगर आपको N2 निकालना है. तो फर्स्ट लाइन के लिए ये वैल्यू है, तो वेवलेंथ अगर आप निकालोगे फॉर हाइड्रोजन तो 1/λ इज इक्वल टू RH 1/3 3 = 9 माइनस 1/4 4 = 16. लैम्डा का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 144 डिवाइडेड बाई 7R. और अगर मुझे फाइंड आउट करना है लास्ट लाइन के लिए, so for last line it is going to be N1 is equal to 3, N2 is equal to infinity. Same चीज 1/λ is equal to RH 1/9 minus 1/infinity का स्क्वायर. So यहाँ से जब लैम्डा निकालोगे it will be 9/RH. तो इस टाइप के छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. So this was about your Paschen. Next is bracket. So basically it is fourth series of hydrogen spectrum. Okay, it belongs to infrared region. N1 की वैल्यू इसके लिए 4 होती है, N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 5 6 7 till infinity. ओके, अगर मुझे हाइड्रोजन के लिए निकालना है फर्स्ट लाइन फॉर हाइड्रोजन, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट लाइन. सेम कॉन्सेप्ट है, बस चीज़ें ध्यान रखना है. N1 N2 क्या होगा. फर्स्ट लाइन के लिए N1 विल बी 4, N2 विल बी 5. तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी 1/λ
आर एच, जेड का वैल्यू 1 है तो मैं नहीं लिख रही, 1/4 4 माइनस 1/5 5, तो यहाँ से जब लैम्डा का वैल्यू निकालोगे इट विल बी 400 डिवाइडेड बाई 9r। एक बार जस्ट चेक कर लेना वैल्यू ठीक है नहीं है, मोस्टली यही रहेगा। 25 माइनस 16 कितना होता है, 9 ही होता है ना, हाँ ठीक है। अब मुझे इसके लिए लास्ट लाइन निकालना है। लास्ट लाइन के लिए n1 इज इक्वल टू 4, n2 इज इक्वल टू इंफिनिटी, सेम वे 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच, 1 अपॉन 4 4 16 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर, तो लैम्डा यहाँ से आ जाएगा 16/r। ओके, लिखो ये जल्दी से। फिफ्थ है पीफंड सीरीज। इसकी बात करें तो इट इज द फिफ्थ लाइन, सॉरी फिफ्थ सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फिफ्थ सीरीज है। नेक्स्ट पॉइंट, इट बिलोंग्स टू अगेन IR रीजन। ठीक है, IR रीजन पे करेगा। इसके लिए n1 का वैल्यू 5 है, n2 का वैल्यू 6 7 टिल इंफिनिटी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, फर्स्ट लाइन के लिए n1 का वैल्यू 5, n2 का वैल्यू 6, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच, जेड 1 है, 1 अपॉन 5 5 25 माइनस 1 अपॉन 6 6 36। यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो लैम्डा आ जाएगा 900/11r। दिस इज फॉर फर्स्ट लाइन। अगर हमको लास्ट लाइन के लिए निकालना है, n1 का वैल्यू तो 5 ही रहेगा, n2 विल बी इंफिनिटी, सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 अपॉन 25 माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 25/r। लिखो जल्दी से। हम्फ्री की बात करें, इट इज द सिक्स्थ सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम and it belongs to IR region। पहला वाला UV में पड़ता है, सेकंड बाल्मर विजिबल में पड़ता है, उसके बाद सब IR में पड़ते हैं। इसके लिए n1 का वैल्यू 6 रहेगा, n2 का वैल्यू 7 8 से इंफिनिटी का। और फॉर हाइड्रोजन अगर हमको निकालना है, फर्स्ट लाइन के लिए n1 विल बी 6, n2 विल बी 7, सो 1 अपॉन लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, आर एच 1 अपॉन 6 6 36 माइनस 1 अपॉन 7 7 49। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 49 माइनस 36 कितना हुआ,
13, यस। सो डिनोमिनेटर में 13 आर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 36 इंटू 49 को, कितना आ रहा है वैल्यू 1764। ये लैम्डा का वैल्यू हो गया फॉर फर्स्ट लाइन। और अगर मेरे को निकालना है लास्ट लाइन के लिए n16 n2 इंफिनिटी, तो 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा RH 1 अपॉन 36 माइनस 1 अपॉन infinity square. Ultimately lambda will be equal to 36 by RH. ओके, सो यूजुअली आपके एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इट विल बी कमिंग फ्रॉम दी फर्स्ट 3 सीरीज मोस्टली। हमफ्री और पी फंड से तो कुछ भी नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, बट स्टिल यू शुड नो कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं और क्या आ रहा है, तो दिस इज हाउ यू डू इट। ठीक है, चलो लिखो जल्दी से, देन वी विल एंड द क्लास।